Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will start from question number 3, exercise 7.2, and unit is coordinate geometry. In question number 3, we are given that we are supposed to conduct a sports activity in the rectangular shaped playground, and lines are to be drawn, have been drawn by using the chalkboard, which are at a distance of 1 meter apart, 1 meter from each other, and also 100 flower pots are to be placed along side AD of rectangle ABCD in such a way that these 100 parts are at a distance of 1 meter from each other. And we know that when these 100 parts are at a distance of 1 meter from each other, total parts are 100 and distance between them is 1 meter, then obviously we can say that the total distance AD equals to 100 into 1, that becomes 100 meter. Clear? And the next part of the question says that Niharika runs 1/4 of AD, that is this 100, and on second line, and she is going to post a green flag there. Niharika, she runs on second line and runs 1/4 of AD, and she posts green flag there. And Preet runs 1/5 of AD, 1/5 of 100, and on 8th line, and she posts their red flag. What we had to do, first part of the question says that we had to determine the distance between these two flags, and after that Reshma, another part of the question is that it states that Reshma is half away from these two flags, from these two girls, and she wants to post a flag in between them. And what we had to do, we had first of all determine the distance between these two girls, between these two flags. And after that, Reshma, being half away from these two girls, from these two flags, she wants to post the blue flag there. And we have determined the coordinates of the blue flag, where the blue flag is to be placed. What we can do, first of all, we take these two sides, that is side AB as x-axis and AD as y-axis. After that, we can determine the position of these two flags, and when we get the position of the flags, and we know that what will be the abscissa side ordinate of these two flags, and after that we will find the distance between these two flags by using distance formula as explained in the exercise number 7.1. and after that we know that this blue flag lies in between these two flags, therefore obviously it can divide the join of this distance in the ratio of 1:1. Now I may proceed. What we did, take AB of ABCD as x-axis and side AD of ABCD as y-axis. First of all, we have to find the location of green flag, that is position. Therefore, position of green flag equals to distance covered by Niharika वही है बराबर क्या, that is Niharika runs 1/4 of AD on second line, that is understood. That is 1/4 of AD, that is 100 meter. We can say that 4 1s, 4 2s 8, 2 4 5 is 20, which gives us 25. Now we can easily say that therefore the location या पोजीशन यहाँ पे थे दी गई थी हमें, यहाँ पे पोजीशन ऑफ या लोकेशन ऑफ ग्रीन फ्लैग हमने निकाली. अब वी कैन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग बेटा है बराबर, दैट इज निहारिका रन्स ऑन सेकंड लाइन एंड flags and posts flag at 25 units. Now we can say that coordinates of green flag equals to 2, 25. I see we can determine the position of red flag.
that is distance covered by Preet. For a distance, for Preet's distance, we know that Preet runs 1/5 of AD on 8th line. We better know that, which is 1/5 of 100. 5 ones, 5 twos, 5 zeros, which gives us 20. Therefore, we can say that यहाँ पे हमें पता चल जाता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,25. अब we can say that coordinates of, अब हमने किसके कोऑर्डिनेट्स निकाले? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ रेड फ्लैग equals to moves on 8th line Preet and posts the flag at 20 units. That is abscissa here is 8 and ordinate is 20. Now we can find now for a distance. अब हमने distance निकालनी है, तो distance यहाँ पे हम निहारिका या प्रीत के दरमियान निकाल सकते हैं, या उससे बेहतर रहेगा क्योंकि जहां पे उन्होंने पोस्ट फ्लैग किया, कौन कौन सा पोस्ट किया? ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, एंड वी कैन नेम इट एज GR. वी नो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास GR इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Here x1 equals to 2, x2 equals to 8. We can write here it as 8 comma 25. 20, sorry. y1 equals to 25 and y2 equals to 20. Now substitute the values of abscissa and ordinates. We can write as x2 का value है 8 minus 2 square plus 20 minus 25 square. और GR equals to 6 square plus minus 5 square. GR equals to root of 6 into 6 हो गया 36 plus minus, तो दो बार है, minus into minus हो गया plus 5 is 25. Now we can write as GR equals to 6 plus 5 11, 1 is carry, 3 plus 1 हो गया 4 plus 2 हो गया 61 units. Therefore distance between, we can write as required distance between green and red flags is root of 61 units. Now we can write here it as it is 60 root of 61 units. यहाँ से यहाँ तक distance. Also we are given that Reshma is half away from both of them, that is both Niharika and Preet, and she has to post blue flag there. Therefore we can say that for coordinates she has to post blue flag there, obviously.
for coordinates of blue flag, we know that it lies in between green and red flag. We know that it lies between green and red flag, therefore that is it divides the join of green and R, that is red, green and red flags, in the ratio of 1:1, that is b of x comma y होगा बराबर एब्सिसा x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. Now we know that here अगर x1 की बात की जाए, here x1 है बराबर 2, x2 equals to 8 comma y1 है बराबर 25 and y2 is equal to 20. Therefore we can say that b of x comma y equals to x1 2 plus 8 by 2 comma 25 plus 20 by 2, that is b of x comma y equals to 10 by 2 comma 45 by 2, or we can write it as coordinates of blue flag b of x comma y equals to 5 comma 22.5, that is required coordinates of blue flag are 5 comma 22.5. Therefore we can say that Rishma is going to post a flag by running 22 by 5, that is the location, by running 22 by 5 of AD, and she will post the flag at on the line number 5. Now it is clear. Question number next. क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स. हमारे पास लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, एंड द पॉइंट्स आर माइनस ए ऑफ, लेट इट बी ऑफ -3 comma 10 and b of 6 comma -8 is divided by point P. P of, and P के coordinates दिए गए -1 comma 6. I will make you understand here. We are given that P of -1 comma 6 divides the join of -3 comma 10 and 6 comma -8 in the ratio of, let the ratio be m1 is to m2. तो clearly for, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, for P of x comma y dividing the join of A of -3 comma 10 and B of 6 comma -8 in the ratio of, ratio क्या है, of m1 is to m2 we know by section formula, that is P of x comma y का वैल्यू है -3 comma 10, या डायरेक्ट हम लिखेंगे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल we will write as P of x comma y equals to m2 x1 plus m1 x2 divided by 2 comma m2 y1 plus m1 y2 divided by 2.
here if we give the values, that is p of x comma y, तो x का वैल्यू है -1 एंड y का वैल्यू है 6 इक्वल्स टू m2 हमने निकालना है। x1 का वैल्यू है -3 प्लस m1 भी हमारे पास नहीं है, x1 का वैल्यू है यहाँ पे -3 और x2 का वैल्यू यहाँ पे 6 है, डिवाइडेड बाय 2। देखो बेटा अगर यहाँ पे आप देखोगे m1 m2 यहाँ पे दोनों पे आता है, हमने एक ही निकालना है। आप ये दोनों साइड भी ले सकते हो या हम यहाँ पे एक ही भी ले सकते हैं। तो दैट इज वी कैन राइट एज m2, तो y1 का वैल्यू है 10 प्लस m1, तो y2 का वैल्यू है -8। तो अब अगर हम डिवाइडेड बाय है, सॉरी 2 यहाँ पे नहीं है, इट इज m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 प्लस m2 क्योंकि हमारे पास रेशियो नहीं है, तो दैट इज m1 प्लस m2। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है। देखो बेटा यहाँ पे अगर हम -1 कोऑर्डिनेट्स x के बराबर होंगे और y के कोऑर्डिनेट्स y यहाँ पे दूसरे हाफ के बराबर होंगे, तो यहाँ पे m1 m2 अगर हम दो पार्ट्स में एक ही पार्ट लेंगे तो वहां से भी हमें आएगा, अगर ये दोनों लेंगे तो हमारा रेशियो सेम ही आएगा क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन का रेशियो है m1:m2। तो वी कैन राइट एज -1 इक्वल्स टू -3m2 प्लस 6m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको ऐसे आप अगर लोग इसका निकालोगे भी तो तभी ये इसी के बराबर आ जाएगा। तो इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम हम एक ही साइड ले सकते हैं, दैट इज -m1 -m2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू -3m2 प्लस 6m1। क्लियर? हाँ, m1 एक साइड लाएंगे -m1, तो यहाँ पे प्लस 6m1 है, तो इसको जब ट्रांसपोज करते हैं इट बिकम्स -6m1 इक्वल्स टू -3m2। तो ये -m2 है, जब हम ट्रांसपोज करेंगे इट बिकम्स प्लस m2। तो अब अगर हमने रेशियो निकाला इनका 6 प्लस 1 हो गया 7, साइन माइनस का आएगा -7m1 इक्वल्स टू -2m2। तो m1 बाय m2 ट्रांसपोज करते हैं तो मल्टीप्लाई, तो डिवाइड बनेगा, यहाँ पे 2 7 मल्टीप्लाई है तो 2 को डिवाइड हो जाएगा। तो दैट मीन्स देयरफॉर का रेशियो इज m1:m2 का रेशियो है 2:7। हाँ, अब दूसरे ऑन द सेकंड हैंड अगर आप 6 और ये वाला y के कोऑर्डिनेट्स लोगे तो ऑब्वियसली ये भी 2:7 के बराबर आएगा। नाउ we'll proceed towards question number next. Question number next says that question number 5, find the ratio in which the line segment join. हमने अब रेशियो निकालना है, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट दिया गया है that joins the points A के कोऑर्डिनेट्स इसने दिए हैं दैट इज 1, -5 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं दैट आर इक्वल टू 4, -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग यहाँ पे है, इट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, दैट मीन्स पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, लेट इट बी P of n, it lies on x axis, तो ऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ y या ऑर्डिनेट इसका 0 ऑब्वियसली होगा क्योंकि y x एक्सिस पे ही लाई करता है, तो y के कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, यहाँ पे y 0 के बराबर होगा। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और इसके बाद हमने एक तो इसका रेशियो निकाल, दैट इज रेशियो भी m1:m2। हाँ, तो एक तो हमने रेशियो निकाला और दूसरे हमने कोऑर्डिनेट्स इसके निकाले, पॉइंट ऑफ डिवीजन एंड p ऑफ x, 0 कहाँ से लाए, बिकॉज p लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे लाई करता है, तो वी कैन से दैट देन द कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डिनेट ऑफ y विल बी इक्वल टू 0। वी कैन राइट इट एज p ऑफ x, y is the point on, yeah, p of x comma y is the point on x axis which divides
द जॉइन ऑफ, या अगर पी ऑफ एक्स कामा वाई, वाई का वैल्यू आप नीचे भी दे सकते हो और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स कामा 0 is the point on x-axis which divide the join of a of 1 comma minus 5 and b of minus 4 comma 5, 1 comma minus 5 minus 4 comma 5 in the ratio of, ratio हमारे पास नहीं है, let that be ratio of m1 is to m2. Therefore for we know that p of x comma 0 divides the join of, किसका join, a of 1 comma minus 5 and b of minus 4 comma 5 in the ratio of, किस रेशियो में, जो हमने लिया है m1 is to m2. therefore that is we know by, अब हमारे पास है सेक्शन फार्मूला, we know by section formula that is p of x comma 0, ऑर्डिनेट इसका 0 है, इक्वल्स टू m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कामा m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अब यहाँ पे वैल्यूज हम लेते हैं. हियर y का वैल्यू 0 है, x1 है बराबर बेटा 1, x2 है बराबर -4, y1 इक्वल्स टू -5 एंड y2 इक्वल्स टू 5. हाँ, -5 एंड 5. therefore p of x कामा 0, अब वैल्यूज देके क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट इज m2 हमें निकालना है, x1 1 के बराबर है प्लस m1 वो भी निकालना है इंटू x2 दैट इज -4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्कामा m2 y1 that is -5 plus m1 y2 that is 5 divided by m1 plus m2. clear? now or we can write it as, अब हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x के कोऑर्डिनेट्स या x एब्सिसा x के बराबर होगा और ऑर्डिनेट y के बराबर होगा, क्योंकि हमने एक तो कोऑर्डिनेट्स निकाले और रेशियो भी निकालना है. रेशियो हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम देंगे तो y का वैल्यू दिया गया है तो ऑर्डिनेट्स हमें रेशियो ऑब्वियसली आएगा. तो वी कैन राइट एज p ऑफ, या सिंपली वी कैन राइट x इक्वल्स टू, अब सॉल्व करते हैं इसको, m2 इंटू 1 हो गया m2 -4 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने x का वैल्यू निकालना. क्लियर? ऑल्सो और हमारे पास है y तो वैल्यू 0 के बराबर है, ऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे -5 m2 प्लस 5 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. क्लियर? अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें रेशियो आएगा m1 इज टू m2 का, या वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2. हाँ, 0 इंटू m1 प्लस m2, तो 0 का डिनोमिनेटर 1 है, इक्वल्स टू 1 इंटू -5 m2 प्लस 5 m1. क्लियर? हाँ, 0 इंटू m1 प्लस m2 दैट गिव्स अस 0 इक्वल्स टू -5 m2 प्लस 5 m1. m1 इज टू m2 हमें रेशियो आना चाहिए, तो हम इस 5 m1 को ट्रांसपोज करते हैं, -5 m1 इक्वल्स टू -5 m2. क्लियर? दैट इज m1 या m1 बाय m2 इक्वल्स टू 5 by 5,
that is m1 is to 5 1 is 5 1 by 1, m1 is to m2 equals to ratio आया हमारे पास 1 is to 1. now it is clear. शाबाश. अब हमने क्या काम करना है, we have determined the therefore required ratio के एक तो रेशियो हमने निकाला था, that is required ratio is 1 is to 1. now put, अब हम क्या काम करेंगे, m1 equals to 1 and m2 equals to 1 in equation first we get. अब हम वैल्यूज देते हैं यहाँ पे, तो दैट इज हमने x का वैल्यू निकाला, x इक्वल्स टू m2 का वैल्यू हमारे पास 1 आया, माइनस 4m1 4 into 1 divided by m1 plus m2 1 plus 1. clear? that is x equals to 1 minus 4 divided by 2, x equals to minus 3 by 2. that is therefore required coordinates of p of x comma y equals to x का वैल्यू माइनस 3 बाई 2 और y का वैल्यू y equals to 0, which is the required coordinates of p of x comma 0, the point lying on x-axis and coordinate उसका 0 है, तो we can say that and this p of x comma y equals to minus 3 divided by 2 comma 0 divides the join of AB in the ratio of जो हमने अभी निकाला, that is 1 is to 1. now next question. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, तो I hope that you will do it by yourselves. So we are given that if the coordinates say for example A, B, C or D हमारे पास, these are the vertices of a parallelogram and P is a point which of a parallelogram ABCD. हाँ, तो we have to find the values of x and y. That is, if A of 1 comma 2, B of 4 comma y, C of x comma 6 and D of 3 comma 5. देखो बेटा, हमारे पास दिया गया, we are given a parallelogram ABCD and we know that parallelogram oppose each pair of opposite sides are parallel as well as equal, diagonals bisect each other. When diagonals bisect each other, अगर यहाँ पे P of x comma y हमारे पास कोई भी point, therefore it divides the join 1 is to 1. अब अगर हमने इसके coordinates निकालने होंगे तो obviously वो किसके बराबर होंगे, तो that means it will be we can find it by midpoint formula. अब अगर हमने यहाँ से भी coordinates निकालने पड़ेंगे तो यहाँ से भी 1 is to 1 है, तो यहाँ से भी इसका रेशियो 1 is to 1 आएगा, तो we can determine it by midpoint formula. तो we are given that these are two diagonals. जब हमने दो diagonals का रेशियो निकाला, इनका point of division हमने निकाला, तो that means दोनों का सेम है, तो whatever will be the value of this p of x comma y, जो पहले में होगा और दूसरा p of x comma y जो सेकंड पार्ट में होगा, तो दैट मीन्स ओबियसली वो एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे ये दोनों का सेम है, तो वहां से आपको ये दोनों साइड्स जो यहाँ पे आपके जो दो साइड्स बाय मिड पॉइंट फार्मूला जो आएंगे, तो दो वो राइट साइड्स वो आपस में बराबर होंगे एंड व्हेन यू गो फॉर सॉल्विंग वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, वी कैन डिटरमाइन द एब्सिसा एंड यू कैन डिटरमाइन द ऑर्डिनेट. क्लियर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, ये आप खुद करोगे. अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चले जाते हैं. हाँ, ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, दैट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए. देखो बेटा, हमारे पास हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ए निकालने हैं,
where AB is a diameter of a circle whose center is, we are given a circle with AB, it is diameter, AB इसका diameter है और C इसका center इसने दिया है। तो इसने क्या कर, हमने क्या निकालना है, और द डायमीटर C is, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB, जैसे हम लेते हैं x1, y1, वी नो दैट C इज द सेंटर। अगर C सेंटर है तो दैट मीन्स ये दो रेडियस इनके बराबर होंगी सर्कल की, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो C है, जिस C के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, ये डिवाइड करता है इसके ज्वाइन को, डायमीटर के ज्वाइन को। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये पोर्शन इसके बराबर है। तो अगर यहाँ से पर ये 100 होगा, ये भी 100 होगा, तो इनका रेशियो आएगा 100:100, दैट इज 1:1। देयरफॉर वी कैन से दैट C ऑफ 2, -3 divides the join of A of x1, y1 and B of 1, 4 in the ratio of 1:1. And now it is clear by midpoint formula you can determine the coordinates of x1, coordinates of A, that is abscissa and ordinate of A. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, that is we are given that, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं C of 2, -3 divides the join of, किसके ज्वाइन को, A of x1, y1 and B of x2, y2 in the ratio of, या x2 इसके वैल्यूज दिए गए हैं 1, 4 in the ratio of 1:1, that is we know by midpoint formula। तो midpoint formula है that is C of x, या C of 2, -3 equals to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 by 2। तो C of 2, -3 equals to x1 का वैल्यू हमें निकालना है, दैट इज x1 प्लस x2 का वैल्यू 1 है डिवाइड बाई 2, y1 का वैल्यू हमें निकालना है प्लस y2 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑब्वियसली 2 होगा बराबर x1 प्लस 1/2, 4 होगा बराबर, सॉरी -3 होगा बराबर यहाँ पे equals to y1 plus 4 divided by 2, that is 2 2s 4 equals to x1 plus 1, that is x1, या 4 minus 1 equals to x1, x1 equals to 3। क्लियर। अब यहाँ पे अगर इसकी बात किया 3 2 6, 3 माइनस है परहैप्स, हाँ 3 माइनस है यहाँ पे, तो -6 equals to y1 plus 4, that is we can write it as -6 - 4 equals to y1, or y1 equals to -10। तो therefore required coordinates of A of x1, y1 equals to 3, -10। थोड़ा सा मैंने हिंट दिया इसको, and I hope that you got it and you can do it by yourself। Now question number 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ A and B are 2, -2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, अगर सॉरी हमारे पास पॉइंट्स हैं A और B। A का वैल्यू इसने, A के कोऑर्डिनेट सॉरी हैं -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4 एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने हैं सच दैट AP इक्वल्स टू, लेकिन इसने दिया है कि ये जो AP यहाँ से यहाँ तक है, कोऑर्डिनेट लेट इट बी x, y। तो AP हियर वी आर गिवन दैट AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB।
तो दैट मीन्स हमें रेशियो नहीं दिया गया अभी, लेकिन हिंट इसने रेशियो के बारे में दिया है। तो वी आर गिवन दैट p ऑफ x comma y divides the ratio of divides the join of ab in a certain ratio. We had first of all we had find the ratio of that is join p the at the point p that joins the divide of divides the join of ab in the ratio of whatever that will be, and we are given that AP, लेकिन इसे हिंट दिया है AP किसके बराबर है 3/7 ऑफ AB के बराबर है। तो we had first of all we had determine AP कितना है, उसके बाद हमने डिटरमाइन करना है PB किसके बराबर है। तो that means obviously we have to first of all we have to determine the ratio M1 is to M2, and after that we have to find the coordinates and we can determine them by the section formula. लेकिन before proceeding towards the question we have to determine the ratio M1 is to M2. हाँ, we are given that, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे we are given that हमें दिया गया है कि AP equals to 3/7 of AB. क्लियर? बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं क्या हमें पता है AP प्लस PB है बराबर AB, AP प्लस PB पूरा जो ये है ये AB के बराबर है, ये हमें पता है, इट इज अंडरस्टूड। तो दैट इज इफ वी गिव द वैल्यू ऑफ AP एज, या और वी कैन राइट एज PB जो हमने निकालना है, दैट इज AB माइनस AP। क्लियर? और PB के बदले हम लिख PB किसके बराबर होगा, AB इक्वल्स टू AP का वैल्यू है 3/7 ऑफ AB बाय क्वेश्चन जो इसने दिया है वहां से, और हम ऐसे लिख सकते हैं PB इक्वल्स टू AB माइनस यहाँ पे ये, हाँ तो यहाँ पे हम अगर हम AB को कॉमन निकालते हैं दैट इज AB इक्वल्स टू यहाँ पे 1 रहा माइनस 3/7। क्लियर? वो हो गया बराबर PB इक्वल्स टू AB इंटू 7 1 हुआ 7 माइनस 3 1 3 डिवाइडेड बाई 7। क्लियर? वो हो गया बराबर PB इक्वल्स टू AB इंटू 4/7 और PB इक्वल्स टू 4/7 ऑफ AB। नाउ इज इट क्लियर? हाँ, लेकिन खत्म नहीं हुआ, रेशियो के बारे में हमें पता चला, दैट इज देयरफॉर रेशियो ऑफ AP डिवाइडेड बाय PB किसके बराबर होगा, AP को अपना वैल्यू दो, दैट इज 3/7 ऑफ AB, और इसके बाद हम किससे वैल्यू देते हैं PB को, दैट इज 4/7 ऑफ AB। AB हो गया कैंसिल, दैट इज अ रेशियो ऑफ AP divided by PB equals to 3/7 into 7/4, 7 cancel, that is AP is to PB है बराबर 3:4। क्लियर? Therefore now for, अब कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले, now for coordinates of, या डायरेक्ट हम लिखेंगे, नाउ वी नो दैट, नाउ बाय क्वेश्चन P of x comma y divides the join of A of A के कोऑर्डिनेट्स है -2 -2 एंड B of 2 -4 in the ratio of, तो रेशियो है यहाँ पे, अब हमारे पास है 3:4, that is we know by section formula, that is P of x comma y equals to M2x1 plus M1x2 divided by 2 comma M2y1 plus M1y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आगे
आई होप कि आपको खुद आएगा। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ देने, रेशियो भी आपके पास है, कोऑर्डिनेट्स एब्सिसास भी हैं और ऑर्डिनेट्स भी है। कोऑर्डिनेट्स आप दो पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको पी ऑफ एक्स कमा वाई इन द रेशियो ऑफ 3:4 डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली आप नाउ कोऑर्डिनेट्स इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए आपके लिए असाइनमेंट रखा है क्योंकि प्रीवियसली जो हम क्वेश्चन इससे पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो वहाँ पे हम यही सेक्शन फार्मूला डिस्कस करते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेना कि क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। देखो हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी दी गई है, फिर से रिपीट वही क्वेश्चन हो रहे हैं ए बी। तो ये लाइन ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ए एंड बी व्हिच इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हाँ, यहाँ पे लाइन से फार इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और यहाँ से भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, लेकिन लाइन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, 1 2 3 और 4। तो दैट मीन्स सी डी एंड ई, एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई और एक्स कामा वाई। आपने क्या काम करना है, यू हैव डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आप सी के कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो ये 1 + 1 1 और 1 पूरे 4 है, ठीक है ना। तो अगर हम सी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक सी तक ये 1 है, तो रेशियो बनेगा 1:3, 1 2 3। अगर डी के हम निकालें दैट इज 2:2, या आप ये भी कह सकते हो कि 1:1। क्लियर, ये मिड पॉइंट बन जाता है इसका। जब ई के लेंगे तो दैट बिकम्स 3:1। तो मुझे लगता है कि यू कैन डू इट। लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं असाइनमेंट रखता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको इनमें से समझ नहीं आता है, कहीं पे प्रॉब्लम होती है समझने में, यू कैन कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑलरेडी आपने ये किया है डिस्टेंस फार्मूला में। तो क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट फाइंड द एरिया ऑफ ए रॉम्बस। हमने रॉम्बस का एरिया निकालना है। से फॉर एग्जांपल quadrilateral ABCD is a rhombus. All sides are equal. You better know that. That is A, B, C और D. हाँ, तो इसके दो डायगोनल्स दिए गए हैं, हमने इसका एरिया निकालना है। देखो बेटा, एरिया ऑफ रॉम्बस होता है बराबर 1/2 ऑफ D1 इंटू D2। तो 1/2 आपको पता है D1 कैसे आएगा। सिर्फ अगर हम AC लेंगे तो AC इंटू DB, तो AC, तो यहाँ पे AC आपके कैसे निकालोगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। और यहाँ पे भी इंटू, यहाँ इसके लिए भी डिस्टेंस फार्मूला निकालोगे तो वहाँ पे आपको दो वैल्यूज आएंगे। तो दैट विल, जब आप डिस्टेंस फार्मूला के ये दो डिस्टेंसेस आप निकालोगे तो उनका हाफ लेना है, उनके प्रोडक्ट का हाफ लेना है, तो दैट विल गिव अस द एरिया ऑफ ए rhombus. And by this exercise number 7.2 gets completed. I wish you all the best. Stay at home, stay safe, take care of yourself, and we will meet in the next lecture. The very important, the very interesting, that is we will go for the derivation of the triangle. Hope you will enjoy, and also you go through these videos, and never forget to press the like button and also subscribe my channel. Thanks.